Good morning, everyone, and welcome to this career oriented diploma course in communication skills and personality development. This course is going to be run between 3rd June to 14th June 2021. And this time we have extended this invitation to include all the cluster colleges also. On behalf of the Department of English and IQAC of the college, I, Dr. Pranjali Kane, welcome all of you to this virtual platform. At the outset, let me acknowledge the presence of students of various colleges. We are really happy, students, to welcome you, have you amongst us. And we would really be happy if all of you join in the Google Classroom meant for this course and sign in, give the assignments on time, and be connected with us so that we will be able to help you out in future too. To acquaint the new students as well as the present students with us, I'll take you back briefly in history. The career oriented course started in the year 2013-14 with the permission of and sponsorship of UGC. It was meant for the students of arts, basically, of our college. But as I told you, we have extended it to the cluster colleges too as a part of our academic social responsibility initiative. The intention is to develop writing skills, to teach you about verbal and non-verbal communication, and in a way help you mold your personality. To shed more light on this, on the nature of the course and the expectations from you, I would like to invite Principal of our college, Dr. Sujit Maitre, the man behind the mission, to inaugurate the course formally and guide you. Sir. Thank you, madam. It's a really very good morning for all of us. We are starting this COC, career oriented course. And when we say career oriented, the word career is of utmost importance. Students join colleges, they pursue their courses in order to get something out of it. And that something is related to their livelihood. So we are expecting a career out of a course. And this course is specially designed for that only. When you say you have joined a course, you need to be very, very serious. And when you have joined a course which is related to a language called English, you need to be even more serious. When I say it is serious, I will take you back to our learning, wherein we started our education maybe in our mother tongue, and most of us will have this mother tongue called Marathi. And in Marathi, they say that it is my boli. The second language you come across is Hindi, जिसको हम बोलते हैं कि मौसी है. तो एक माँ है, दूसरी मौसी है. फिर अचानक से ये इंग्लिश आ जाती है और ये कौन है हमें पता नहीं चलता. और ये पता नहीं चलता इसलिए इसको सीखने में या इसके द्वारा सीखने में we take time, right? So what we are trying to understand is कि इसमें ऐसी क्या तकलीफ है जो इसको थोड़ी सी टफ लैंग्वेज बनाती है, आम लोगों से इसको थोड़ा अलग बनाती है, बट स्टिल दिस रिमेन्स द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. तो ऐसा माना जाता है कि जिसको अंग्रेजी आती है, राइट, ही और शी विल बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, राइट. सो अगर ये चीज है तो हमें जानना होगा कि इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, 3 वर्ड है. पहला है बेशरम, दूसरा है बेहया और तीसरा है बेमुरव्वत. So why I have uttered these 3 words is because you need to have that kind of attitude if you want to learn or master anything. You need not worry about what is going wrong. You need to concentrate and focus on what is going right. ऐसा हो सकता है कि while you communicate in English, while you write in English, आपके पास वर्ड्स नहीं है या आपके दिमाग में ये बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है कि whether I am grammatically correct or incorrect. हो सकता है, राइट. सो इसलिए वो बेशरम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू स्टार्ट समवेयर. प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, उससे दूर भागोगे तो आएगा नहीं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट यू इज दैट
ये जो असेसमेंट का पार्ट है विच इज मोर इम्पोर्टेंट, आप सुनेंगे, लाइव क्लासेस सुनेंगे, नंबर 1, वीडियो क्लासेस उसको सप्लीमेंट करेंगे, नंबर 2, नंबर 3 इज द असेसमेंट जो बताएगा कि आपको लाइव क्लास और वीडियो क्लासेस में से क्या समझा है, और जो समझा नहीं है दैट इज नंबर 4 वेर इन यू हैव टू हैव डाउट क्लियरिंग सेशन। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि दिन भर में कभी भी आप ये लाइव क्लासेस कर सकते हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लाइव क्लास के बाद इमीडिएटली दे विल बी पुट ऑन योर गूगल क्लासरूम, एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग गूगल क्लासरूम एज अ मीडियम जिसके थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग होती जाएंगी। जिनको पहले अटेम्प्ट में नहीं समझा उनको दूसरे अटेम्प्ट में भी समझने में आसानी हो जाएंगी। असेसमेंट इज फॉर ओन सेक, हम उसमें कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं करने वाले। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी दैट यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस। हमारे लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ जुड़े रहे, कंटिन्यूअसली जुड़े रहे, सो दैट यू टेक मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ दिस। With this, I will like to request all students one more time to be attentive. आपके अटेंडेंस से इम्पोर्टेंट हमारे लिए आपका अटेंशन है, और वो आप हमें देंगे। सो ऑन बिहाफ ऑफ आवर रिसोर्स पर्सन्स आल्सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स and welcome all the students from across the colleges to this wonderful program. Thank you very much, madam. Thank you so much, sir, for these words. I'm sure students are going to benefit from this. There are certain issues which are coming. Some of the students are mentioning that they are unable to get into this onto this platform. So those who are already connected, if you can help your friends get connected to this platform, I would be grateful, because we have to take this program ahead. Now, this course is going to focus upon the development of writing skills. There are 3 categories. Certificate course is going to cater to the verbal and non-verbal communication. You can also join that course, which is going to start from the 15th of this month till 27th. It would be there at 10 o'clock only. This second stage, that is the diploma course, is going to focus upon writing skills. And the advanced diploma course, which is going to be there just after this class around 11:15, that session will begin from today itself, is going to focus upon personality development. So all the students are welcome to attend all across the courses. We have opened it all. The only difference is that those who have registered for the diploma course would get the certificate for diploma only, but you're welcome to attend the classes. You're welcome to give us feedback. You're welcome to give the assignments also. And if there are doubts, we will have a doubt clearing session today. I will put it in our WhatsApp group at what time. And if the questions are related to something that the resource person has to say, then we will involve the resource person also. So this takes me to the next step. Let me just give you the brief introduction and introduce the guest also. So this course is going to focus upon development of writing skills. With that end in view, we have set up live sessions 10 to 11, video tutorials. So you have to go to your Google Classroom, students, and you have to see the video tutorial so that you get some extra material, something which is connected to the topic which is going to be discussed today. Then there are assignments which you need to submit today itself. Every day you have to submit the assignments, and a feedback on the resource person. So this feedback is obviously going to tell us whether you have really liked, you have understood, and whether you want to again have this kind of a course on this platform. So as sir was telling us, we have to be in a synchronous way, in an asynchronous way, both ways. We have to get connected to the Google Classroom and study well. To guide you all through this, through the labyrinths of the writing skills or the written words, we have with us many resource persons all these 12 days from the academia and from the industry directly. One such resource person who lives in his own world of words and at the same time writes newspaper reports is Mr. Mandar Morone, the senior correspondent of Maharashtra Times, Nagpur. Mandar has done his master's in mass communication and journalism. He has earlier worked with Lok Satta, Hitwad, Sakal
And we all know these are daily newspapers. Everybody must be reading them also. He is adept in creative, academic, research-oriented writing. He's a translator, blog writer, content writer, and much more. He has also received a fellowship of UNICEF for journalistic writing and has been active in various college activities across the colleges, I mean. He has penned a Marathi poetry ebook, Anahat, published in June 2020. We have a versatile person amongst us. I have read his writings in Marathi as well as in English. He's a regular contributor to many blogs and he has his own blog also. We are going to again meet him in our later session. I, on behalf of the Department of English and the IQAC of the college, heartily welcome Mandar to this platform. Sir, can you please take this up now? Yes, thank you, Dr. Kani. Shall I begin now? Yes, sir, absolutely. Yes. Yes, your screen is visible to us. Yeah. Students, feel free to post your queries or your comments in the chat box, please, and ensure that you're muted throughout the program because otherwise we would disturb the resource person. Thank you so much. Okay. Good morning to all, Principal Sir, Dr. Kane, and all students across the colleges from Nagpur. Let's begin this diploma course, and I am the opening batsman of the course. So the biggest responsibility, I suppose, is on me because if the start is good, I think the entire course will go very well in coming 10 to 12 days. So the topic given to me is basics of writing. Am I audible well? Yes, sir. Absolutely. Absolutely. Yes, you are, sir. Okay. Yes. So the topic given to me is basics of writing. And coming 30-45 minutes or 1 hour, we will go through the various aspects of writing, basics of writing. So to start with, writing is the basic urge of human being. And by writing, it's about only a communication. We want to communicate. We always wanted to communicate, and from past to present, we are constantly communicating. जैसे आप सब लोगों को पता है, आपने सुना है, पढ़ा है, कभी हम नोमैडिक्स थे, मतलब हम भटकते रहते थे, टोलियों में रहते थे, फिर केओस में रहते थे. उस स्टेज से लेकर आज तक हम कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करते आ रहे हैं. जैसे केओस में पेंटिंग रहती थी, वो पेंटिंग वाज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. So, मेरे ख्याल से वो राइटिंग का पहला एक एग्जाम्पल था कि जहां से हमने थ्रू राइटिंग कम्युनिकेट करना शुरू किया था, वो केओस पेंटिंग के थ्रू से. केओस पेंटिंग द्वारा हमने वहां से हमने कम्युनिकेट करना शुरू किया. उसके पहले भी साउंड्स द्वारा हम कम्युनिकेट करते थे. So there were different sounds of tribes and they used to communicate using those sounds. And after that, at some point of the history, we discovered writing, picture making and scripting. So वहां से लेके आज तक फिर हम और एलोरा और अजंता नाम आपने सुने होंगे केव्स के. तो वहां पे छतों पर और दीवारों पर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं. कभी आप जाएंगे तो आप देख सकेंगे. या और भी ऐसे भीमबेटका जैसे कुछ केव्स है, वहां पे भी आपको ऐसे पेंटिंग्स दिखेंगे. तो ये सारा था जो कम्युनिकेशन था और राइटिंग ही था. उस जमाने के ह्यूमंस ने वो किया था. उसके बाद आपने सुना है इंस्क्रिप्शंस. जैसे कोई पुराने किलों में रहता है या पुराने किसी मॉन्यूमेंट में रहता है, जिन्हें हम शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. कॉपर के प्लेट्स पे या अलग अलग मेटल्स के प्लेट्स पे वो लिखा रहता था, जिसमें लिखा था कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द अशोक पिलर in Delhi or Qutub Minar or anything, any historical place, you will find that inscriptions there which gives you information about when it was built, who was ruling at that time. So a brief history of the period is given in those inscriptions. So that was one form of writing. And then we discovered papers, and that was the what could I say, civilization. जब से पेपर
किया, वहां से हमारी प्रोग्रेस या इट वाज अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन फॉर ह्यूमन बीइंग. सो पेपर हुआ और आज हम सारे स्क्रीन से अटैच है. सो from caves to screens, we have discovered various forms of writing and communicating. So that was the point, that it is the basic urge of humans, and we discovered different forms of expressing our thoughts. What is the importance of, क्यों लिखना है भाई, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना है हमको, क्यों लिखते, क्यों है, importance of writing and documentation. कहता है कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन नोन जो है, हिस्ट्री को जो पता है वो एटलीस्ट 5000 ईयर ओल्ड है, लेकिन हमारे रामायण और महाभारत उससे भी ज्यादा पुराने हैं, ऐसा हम मानते हैं. लेकिन व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर? सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 5000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, वो लिखी नहीं है. और जो चीज लिखी नहीं होती, डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, उसके बारे में कंट्रोवर्सी होती है. और अगर आप चाहते हैं कि सब विदाउट कंट्रोवर्सी हो, वेल एक्सेप्टेड हो, तो आपको वो रिटन होता है, और इसलिए राइटिंग ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसलिए चाइनीज हिस्ट्री एक्सेप्टेबल है, वेस्टर्न हिस्ट्री एक्सेप्टेबल, लेकिन हमारी उनसे भी पुरानी हिस्ट्री होने के बावजूद कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो रिटन अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस होता है. अनदर थिंग इज व्हाट इज रिटन इज फैक्ट. हम सब लोग मानते हैं ये जो लिखा होता है, कागज पे होता है, अभी आप सॉफ्ट कॉपी में भी कह सकते हैं, जो लिखा होता है वो सच है, ऐसा हम मानते हैं. गवर्नमेंट की कोई ऑर्डर आती है या कोई आपकी कॉलेज से नोटिस आती है, तो सिर्फ बता दिया ऐसा नहीं होता है. जब तक वो कागज पे नहीं आता है उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं कहते हैं. यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ निकलता है, एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, तब तक वो पेपर नहीं पढ़ते हैं, तब तक वो फैक्ट है, वो ऑफिशियल है, ऐसा माने नहीं जाता. इसलिए वॉट एवर इज रिटन दैट इज कंसिडर्ड एज फैक्ट. नाउ दिस इज समथिंग इन मराठी. आप में से कुछ लोगों ने इनका नाम सुना होगा, संत रामदास. दिसा माझी काही लिहावे. That means every day you should write at least something, five lines, 10 lines, whatever it may be. So जो रोज लिखते हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और वो अच्छा लिखते जाते हैं. That is the basic idea. कुछ लिखना चाहिए, that streamlines. And writing is intellectual, skillful, biological, emotional activity. How? जब हम लिखते हैं तो हमारे माइंड, बॉडी, ब्रेन, ये चारों चीजों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है. ऐसा नहीं है कि माइंड कहीं और है और आप सिर्फ पेन चला रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता. माइंड, बॉडी, सोल, ब्रेन जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होते आप अच्छा लिख नहीं सकते. आप लिखना इटसेल्फ द स्किल. बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो है ही वो, क्योंकि हमारा ये चारों चीजें, मतलब बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, और इमोशनल एक्टिविटी है, क्योंकि इमोशंस होते हैं तब अच्छा राइटिंग, उसमें राइटिंग अच्छा हो सकता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एनी आइडिया, कंसेप्ट, थॉट, इंसिडेंट, एक्सपीरियंस कैन बी अ सोर्स ऑफ राइटिंग. कुछ भी लिखने के लिए इंस्पिरेशन किसी भी चीज से मिल सकता है. एनी आइडिया, समझो कि आपको अगर लगता है, अभी ये कोरोना का पीरियड चल रहा है और हम सब लोग प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. अमेजोन से प्लास्टिक आ रहा है, होम डिलीवरी से आ रहा है, मास्क से आ रहा है, हर जगह से प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल आ रहा है. आपको लगता है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट इज एन इशू, सो दैट इज एन आइडिया you have struck, so you can write on that issue. What is the concept? Digital education itself is an concept we all are experiencing since 1 year. So उस पे ये कंसेप्ट हो गए डिजिटल एजुकेशन, उस पे लिख सकते हैं. कोई थॉट है, संत ज्ञानेश्वर पसायदान वाज अ नोबल थॉट, उस पे उन्होंने एक अच्छी पोएट्री लिख डाली है. एक थॉट आपको नया आर्टिकल लिखने में, नई पोएट्री लिखने में, न्यूज रिपोर्ट लिखने में, रिपोर्ट राइटिंग में, किसी भी जगह. इंसिडेंट, entire journalism is about incident and events. 90% of journalism is based on incidents and events. So that is again one source. And experience.
आप किसी म्यूजिकल इवेंट को गए हैं, आप किसी फिल्म को गए हैं, ड्रामा को गए, आपने ट्रैवल किया है, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो, इसमें से आप लिखने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है और आप लिख पाते हो. और अनदर थिंग इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. सो मेनी spiritual writers who experience these things, divine things, spiritual things, and then they write about those. So experience is another source of writing. What is needed for writing? Clarity of writer. आपको लिखना क्या है, ये अगर आपके मन में अगर ठीक से क्लियर है तो आप अच्छा लिख पाते हो. उसमें कंफ्यूजन है तो आपके रिटर्न कॉपी में भी कंफ्यूजन ऑब्वियसली आने वाला है. इसलिए कुछ प्री राइटिंग वर्क करना जरूरी होता है कि आप पॉइंट्स निकाल ले या एक जॉट डाउन कर ले कुछ पॉइंट्स, एक फ्लो चार्ट बना ले किस तरह हमारा आर्टिकल, इस तरह से उस तरह से आपकी क्लैरिटी और अच्छी आ जाएगी और आप अच्छा लिख पाओगे. राइट, लिखना है, कैसे लिखना है? बेसिक है कि आपको इजी लिखना है. आपका जो रीडर है उसको आसानी से समझ में आए ऐसा आपको लिखना है. क्यों सिंपल लिखना है? हम सब लोगों का अटेंशन स्पैन अभी बहुत कम हो गया है. मोबाइल स्क्रीन, जितना हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है उसी वजह से अटेंशन स्पैन कम हो गया. हम 10 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं. इसलिए हम चैनल सर्फिंग हमारी फास्ट होती है, या हमारे हम एप्स से सर्फ करते रहते हैं, हर जगह से सर्फिंग इतनी फास्ट हो गई, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया. इसलिए जब अगर आपको लिखना है तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड लिखना ही पड़ेगा, so that your reader get connected with whatever you are writing. Another thing is well drafted. वो सिर्फ आपके मन में आ रहा है और जैसा मन में आ रहा है वैसे आप रफ कॉपी लिख रहे हो वैसा लिख दिया तो it will not be an article, it would not be a news report or report right or any report, academic report, whatever. So you have to well draft entire thing whatever you are writing. और अच्छे apt use of words, proper words का आपको यूज करना पड़ेगा. This is the most important thing what I feel, knows for the topic. मतलब आपको पोक भी करना है नोज और सेंस भी करना है टॉपिक. हर जगह एक सब्जेक्ट होता है लिखने के लिए, हर जगह एक कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि जिससे आप लिख सकते हो, जिसपे आप लिख सकते हो. बट यू हैव टू सेंस दैट. योर आईज, नोज, ईयर शुड बी वाइड ओपन so that you can sense the topic. और अगर आप टॉपिक मिलते जाएगा तो आप अपने आप लिखते जाओगे. और ऐसे कई टॉपिक आपके आसपास होते हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ माइन. गढ़चिरौली में एक यूनिसेफ ने एक प्रोजेक्ट किया था. माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है गढ़चिरौली, मेलघाट एंड नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो उन्होंने क्या किया कि हर मदर को, वहां के मदर्स को उन्होंने कंगारू बैग्स दिया. कंगारू के पेट में जैसा बच्चा बैठता है तो उस तरह से एक बैग्स बनाए उन्होंने यूनिसेफ ने, और वो डिस्ट्रीब्यूट किए मदर्स को इन ट्राइबल एरियाज, सो दैट देयर चाइल्ड विल बी क्लोज टू देयर बॉडीज, और बॉडी की हीट चाइल्ड को मिलते रहेगी जिसकी वजह से चाइल्ड की डेवलपमेंट अच्छी होगी. सो इट वाज एन यूनिक प्रोजेक्ट. तो ये एक न्यूज होती है, ये एक आर्टिकल का इश्यू हो जाता है. आपने स्कैम वेब सीरीज देखी है, मुझे पता नहीं है, हर्षद मेहता के बारे में वो स्कैम वेब सीरीज है, आप देखना चाहिए जिनको लिखने के बारे में कुछ जानना है. तो अच्छी वेब सीरीज है वो. उसमें वो जर्नलिस्ट को कैसे वो इश्यू मिलता है, कितनी सिंपल चीज से, एक सिंपल इंसिडेंट से उनको एक लिंक मिलती है और उसके जरिए वो हर्षद मेहता के एंटायर स्कैम के बारे में लिखती है, और एंड इट बिकम्स एन बिगेस्ट न्यूज and biggest scam of India. So you should watch the scam web series. So और आप जान सकेंगे कि कैसे एक लिंक मिलती है, कैसे हिंट मिलती है आर्टिकल के बारे में. And now about practical writing, these are the things, 5 W's and 1 H. What is this? Let's think about the 5 W's and 1 H. कुछ भी लिखना है, बेसिक रिपोर्ट राइटिंग का ये मंत्रा है, 5 W's and 1 H. क्या होता है, एक स्टोरी बताता हूं आपको. आपने अभिमन्यु की स्टोरी पढ़ी होगी सबने, महाभारत की. अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाता है, लड़ता है और मारा जाता है. लेट्स अप्लाई दैट स्टोरी टू दिस मंत्रा, 5 W's and 1 H. ये है
किसी भी रिपोर्ट में आपको ये 6 चीजें लानी है। व्हाट टू टेल, व्हेन डिड इट हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, हु वेयर इन्वॉल्व, वेयर डिड इट हैपन एंड हाउ डिड इट हैपन। इन 6 चीजों के आंसर्स आपने लिख लिए तो आपका बेसिक रिपोर्ट, बेसिक न्यूज तैयार हो जाती है। कैसे? अभिमन्यु की स्टोरी लेते हैं। व्हाट टू टेल, क्या बताना है हमें? हमें ये बताना है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाके लड़ा था और उसमें लड़ते लड़ते वो मारा गया था। व्हाट टू टेल। व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ था ये जब हुआ था और अर्जुन और श्री कृष्ण मेन बैटल से इट हैपन, कौरवों का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए पांडवों के पास अर्जुन के सिवा कोई नहीं था और अर्जुन दूर चला गया था, इसलिए सिर्फ अभिमन्यु ही जानता था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए, इसलिए उसे जाना पड़ा। व्हाई डिड इट हैपन, हु वेयर इन्वॉल्व, कौन कौन लोग थे उसमें? कौरव थे, अभिमन्यु था और पूरी कौरव सेना उसके इर्द गिर्द थी, वो सारे लड़ रहे थे उसके खिलाफ। तो हु वेयर इन्वॉल्व, तो ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने मिलकर मारा। वेयर डिड इट हैपन, आज अगर कहे तो कुरुक्षेत्र में हुआ। आज भी वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में वो बैटलफील्ड आपको दिखाई देता है, अगर आप जाए तो वहां पे वो बताते हैं कि ये बैटलफील्ड हुआ करता था। सो वेयर डिड इट हैपन, कुरुक्षेत्र। एंड हाउ डिड इट हैपन, फिर वो एंटायर स्टोरी ऑफ अभिमन्यु, कैसे हुआ, वो कैसे लड़ा, उसने कैसे तीर चलाए, कैसे फाइट किया, फिर दुशासन ने उसको कैसे मारा और सारे लोगों ने मिलकर उसको कैसे किल किया। सो दैट इज व्हाट हाउ डिड इट हैपन। तो ये 6 चीजें मिलाई आपने तो आपकी हो गई स्टोरी अभिमन्यु की तैयार। अभी ये 6 चीजें आप लगाओ, इंडिया पाकिस्तान की न्यूज बन जाएगी। यही 6 चीजें आप लगाओ किसी भी एक्सीडेंट को तो आपके एक्सीडेंट की न्यूज बन जाएगी। यही 6 चीजें अगर आप लगाओ अपने डिप्लोमा कोर्स को तो आपको डिप्लोमा कोर्स के बारे में बेसिक रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ राइटिंग, 5 W's एंड 1 H। इन चीजों को आप लिख डालो, आपका बेसिक रिपोर्ट तैयार हो जाता है। इसेंशियल्स ऑफ राइटिंग, क्या होना चाहिए आपके रिपोर्ट में? फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्यों होने चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स और क्या होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स? समझो हम सारे पीरियड में जी रहे हैं। फॉर लास्ट 1 year वी आर फेसिंग कोरोना की न्यूज आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे। किस Am I audible? Yes, sir. You're audible. कोरोना की न्यूज हम सब देख पढ़ रहे हैं। हमें बताया गया कि नागपुर में, अगर हमने बता दिया कि नागपुर में 5000 डेथ्स हो रही है और आपने अगर पढ़ा तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? कैसे बिलीव करोगे आप? जब तक आप और फिगर्स प्रॉपर नहीं लिखते, वो फिगर आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या फिगर्स दिए हैं, इतनी डेथ्स हुई है, इतने पॉजिटिव केसेस है, इतने निगेटिव केसेस है, ये प्रॉपरली जब तक न्यूज में मेंशन नहीं होता वो न्यूज क्रेडिबल नहीं है, वो अच्छी न्यूज नहीं है। तो आपको अपने राइटिंग्स में जो भी फैक्ट्स है और फिगर्स है वो प्रॉपर लिखने चाहिए। समझो अपना डिप्लोमा कोर्स SBCT कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है, ये हमने ना बताते हुए हमने अगर ऐसा बता दिया कि ये किसी मुंबई के कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है तो ये फैक्ट नहीं होगा। आपको फैक्ट लिखना है तो वही लिखना है जो एक्चुअल में है, जो सच में है वो अगर लिखेंगे। इसी प्रकार मैंने फिगर्स के बारे में आपको बताया। इलेक्शन की स्टोरी होती है, कोई अगर जीत जाता है तो हमें इलेक्शन की स्टोरी लिखनी है तो उसके नंबर ऑफ वोट्स ही गॉट, हमें प्रॉपर फिगर लिखना पड़ता है, तभी जाके वो स्टोरी क्रेडिबल बनती है। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर द एसेंशियल्स ऑफ राइटिंग। एनालिसिस, एक स्टोरी में, एक रिपोर्ट में आपको ब्रीफ डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट है, जिसकी वजह से आपके रीडर्स को पता चले कि हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, आगे क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने एनालिसिस में लानी है। सोर्सेस एंड रेफरेंसेस, अभी सबसे ज्यादा न्यूज कहाँ से आती है हम लोगों के पास? सोशल मीडिया से। WhatsApp has become another university.
और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे कई लोग ग्रेजुएट और पीजी हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं। बट व्हाट्सएप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं। क्यों क्रेडिबिलिटी नहीं है? फॉरवर्ड्स होती जाती है इंफॉर्मेशन, लेकिन उसमें सोर्सेस या रेफरेंसेस नहीं रहते। किसने बताया है, क्या प्रूफ है, ये सारी चीजें व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स में नहीं होती है, और इसलिए हम लोग व्हाट्सएप के इंफॉर्मेशन को इतना क्रेडिबल नहीं मानते हैं जितना प्रॉपर न्यूज चैनल्स से या न्यूज़पेपर्स में या किसी प्रॉपर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। उसमें अगर आए तो हम मानते कि हाँ ये चीज सच्ची है, ये चीज फैक्ट है, लेकिन व्हाट्सएप को नहीं मानते। द इशू इज अबाउट क्रेडिबिलिटी। और क्रेडिबिलिटी कैसे आती है? लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर हो तो आप उसके पीछे, या पीएचडी को होगा या कोई भी रिसर्च पेपर, उसके पीछे आप लिखते हैं रेफरेंस मटेरियल या बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, आप लिखते हैं कि इस बुक का मैंने रेफरेंस लिया, एनसाइक्लोपीडिया का लिया, या गूगल की इस साइट से लिया, और ऐसी सारी बिब्लियोग्राफी हम एक रिपोर्ट के पीछे या रिसर्च पेपर के पीछे लिखते हैं। सो दोज आर द सोर्सेस यू यूज व्हाइल राइटिंग योर रिपोर्ट। सिमिलरली कोई रेफरेंस देते हैं कि इस समय ऐसा हुआ था, या कोर्ट का ये डिसीजन था, 1992 में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था यह, और उसके बाद उसके बेसिस पे आज का डिसीजन आया। सो दैट इज द रेफरेंस। जब ऐसे सोर्सेस, रेफरेंस या कोट्स ऑफ सम ऑफिशियल्स, नरेंद्र मोदी ने कुछ कह दिया, इसकी वजह से होता नहीं है कि वो कोट नहीं आता है, तब तक उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। सो प्रॉपर सोर्सेस, mention of proper sources, mention of references, and mention of quotes of officials, authorities, that gives credibility of your report. So you have to take into consideration these sources, and you have to mention to increase the credibility of your writing. Objectivity. हम जर्नलिज्म में हम जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम पहली And another thing is, every coin has more than two sides. हर कॉइन को दो से ज्यादा साइड्स होती है। मतलब ट्रू और फॉल्स ऐसे किसी चीज के बारे में होता नहीं है। एवरीथिंग हैज ग्रे शेड। ब्लैक एंड व्हाइट में सब होता नहीं है, ग्रे शेड होता है हर चीज में। मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज के। आप किसी भी चीज, कोई भी चीज ले लो, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। और व्हेन यू हैव टू all these sides of some incident or event or the story. For example, किसी का सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई क्राइम होता है, अगर मर्डर हो गया समझो, हम पढ़ते हैं न्यूज में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है वही सच है, उसके पीछे भी कोई स्टोरी होती है। जितने लोग इन्वॉल्व है, ऐसा दिख रहा है वैसा ही नहीं होता है। कुछ लोग हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वही शायद मेन कल्प्रिट्स हो सकते हैं। तो हमको कोई रिपोर्ट लिखते समय ये ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन ना ले, हम सारे एस्पेक्ट्स, सारी चीजें कंसिडर करें अपने लिखने में, और रीडर्स को, व्यूअर्स को पूरा एक व्यू प्रेजेंट करके दे। हमारा जॉब है ऑब्जेक्टिवली लिखना, एंड नॉट टू फाइंड आउट कंक्लूजन हैस्टिली। Don't hasten for conclusions, just write objectively. और conclusions जो निकालने हैं वो रीडर्स अपने आप निकाल लेते हैं, अगर आप प्रॉपर सब उनके सामने इंफॉर्मेशन देते हो तो। So you have to write objectively, then think from readers point of view. बच्चा कैसा सोचता है उस तरह से सोचो। हमें बताते हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो ऐसे सवाल पूछो जो शायद एकदम एब्रप्ट लगे या फिर बहुत ही सिंपल लगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछना है? तो लेमैन को जो समझता है नहीं है वो पूछो। आप बहुत होशियार हो, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, सब चीज ओके है, बट सारे लोग आपके जितने इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो आपको अगर लिखना है तो आपको उनके बारे में सोचना होगा जो कॉमन पीपल है, और उनके हिसाब से सोच के फिर आपको लिखना है। फिर वो एकेडमिक राइटिंग हो, हाँ, अगर साइंटिफिक राइटिंग फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी है सो दैट इज ओके। उसमें आप स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज कर सकते हो, या सिर्फ
क्या रेस्ट्रिक्टेड टॉपिक्स कवर कर सकते हो, बट अगर आप लार्जर कम्युनिटी के लिए लिख रहे हो तो आपको रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, एंड यू हैव टू कंसिडर ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर मैन. सो दैट इज द बेसिक थिंग. जैसे वैक्सीन का आगे अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, शायद बहुत कुछ पढ़ लिया, मैंने गूगल सर्च कर लिया, मुझे वैक्सीनेशन के बारे में सब पता है, लेकिन मैं लिखते समय वो सारी चीजें ठूस ठूस के मेरे रिपोर्ट में नहीं भरना है. मुझे पता है कि वैक्सीन के बारे में लोगों में अभी भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है. लोग समझते हैं कि वैक्सीनेशन गलत है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. आज भी हमारे नागपुर में भी वही चीज है, बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं कर रहे क्योंकि उनके मिसकंसेप्शंस है. तो जब मैं वैक्सीन, तो मुझे इन सारी चीजों को कॉमन मैन के बारे में, कॉमन मैन को सोच के लिखना पड़ेगा. सो दिस इज द पॉइंट, दैट थिंक फ्रॉम रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें और एक चीज आती है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करना है. मैंने कुछ मतलब जब से ये सोशल मीडिया है तो हमारे सब लोगों के लिखने में कुछ चीजें है. जैसे हम YOU लिखना भूल गए, सिर्फ यू लिख देते हैं. इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं. हमें किसी बैंक में अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो तो वो इतने शॉर्ट फॉर्म में आपसे बात करते हैं कि उनको बताना क्या है, यही चीजें हमें समझ में नहीं आती है. हम भी कई शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन जब आपको लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करना है. SBCT कॉलेज सबको पता नहीं है, जो उससे कनेक्टेड है, एकेडमिक से कनेक्टेड है, उनको पता है. लेकिन अगर आपको एकदम के बाहर है, विदर्भ के बाहर किसी को बताना है तो आपको बताना पड़ेगा श्री बिंजानी कॉलेज, नॉट SBCT. व्हाट इज LED? LED का लॉन्ग फॉर्म बताना पड़ेगा. व्हाट इज VNIT? VNIT का लॉन्ग फॉर्म बताना पड़ेगा. सो नेवर यूज unnecessarily never use short forms in your writings. Next is language is the key. सबसे बेसिक है, यूज सिंपल एंड क्रिस्पी लैंग्वेज. क्यों पढ़ेंगे आपको लोग? अगर आप जब तक सिंपल, अटेंशन स्पैन सबका कम हो गया, तो जब तक आप सिंपल नहीं लिखते तब तक ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ नहीं पाते. हाँ, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल पढ़ पाएंगे, जिनको पढ़ने की आदत है वो आपकी डिफिकल्ट लैंग्वेज पढ़ लेंगे. लेकिन आपको अगर चाहते हैं आपका ऑडियंस बढ़े, आपकी रीडरशिप बढ़े, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. और क्रिस्पी ऑल्सो. उनको अच्छा लगना चाहिए पढ़ते समय, इंटरेस्ट आना चाहिए, और इंटरेस्ट आने की यूज करनी है. प्रिसाइज यूज ऑफ वर्ड्स, अवॉइड अननेसेसरीली डिफिकल्ट वर्ड आपको यूज नहीं करना है. अगर आप यूज ये शब्द यूज कर सकते हो तो व्हाई टू यूज यूटिलाइज? यूटिलाइज की जगह अगर आप सेंटेंस में यूज लिख दो तो भी समझ में आता है लोगों को. सिंपल जितना लिख सके हो उतने आपका रीच बढ़ते जाएगा, उतने आपको पढ़ने वाले लोग बढ़ेंगे. और प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, कहा कौन सा, हमें 10 वर्ड्स आते हैं इसलिए 10 वर्ड किसी भी प्रकार से यूज कर लिया, ऐसा नहीं है. जितना जरूरी है वहां इतना ही हमें वर्ड्स का यूज करना है. कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड नॉट कॉम्प्लेक्स. एकेडमिक राइटिंग में हो सकता है कि आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख रहे हो, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं. अब वो भी कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्ग सेंटेंसेस लिखे वही अच्छा लिखता है. टू राइट सिंपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. तो छोटे सेंटेंसेस लिखने चाहिए, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए. कॉमा कॉमा कॉमा, सेमीकोलन, ये सारी चीजें यूज करते. एक 50 वर्ड्स का आपने सेंटेंस लिख लिया, तो कहाँ शुरू किया था और कहाँ खत्म हुआ ये अगर रीडर भूल रहा है तो आपने कितना भी अच्छा लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं रहता है. यू हैव टू राइट, कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड सिंपल. उससे आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. आप जो लिख रहे हैं वो टाइट रखो, उसको बहुत ज्यादा 200 वर्ड्स की जो बात है वो हम 500 वर्ड्स में, 1000 वर्ड में लिख रहे हैं तो उसको कोई मतलब नहीं है. अब अगर आप कम शब्दों में कम्युनिकेट कर पाते हो तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हो. आपकी कम्युनिकेशन की पावर अच्छी है अगर आप कम शब्दों में कम्युनिकेट कर रहे हो. लंबा लिखना आसान है, कम से कम शब्दों में मैसेज कम्युनिकेट हो सके तो उसमें लगता है स्किल. इसलिए आपको
अपना राइटिंग जो है वो कम से कम शब्दों में करना है। नाउ सम ऑफ द टेक्निक्स फॉर एक्चुअल राइटिंग। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। व्हाट इज इन्वर्टेड पिरामिड? पिरामिड आपने देखा है, उसको उल्टा करना है। मतलब क्या करना है? अगर आप एक न्यूज रिपोर्ट लिख रहे हो, जो पहला पैरा होता है उसको आप कहते हैं इंट्रो, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसमें आपको क्या लिखना है? 5W एंड 1H। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है रीडर को, वो सबसे ऊपर लिखिए। फिर जो कम इंपॉर्टेंट है उसके बाद, और कम इंपॉर्टेंट हो उसके बाद, और जो इंफॉर्मेशन अगर काट भी दी जाए, नहीं भी दी जाए तो चलेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन में लिखिए। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड। लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट। इस पैटर्न से आपको लिखना है, क्योंकि अगर आपकी कॉपी एडिट करने वाला है, आपकी राइटिंग एडिट करने वाला है, वो अगर कुछ काटना चाहे तो वो नीचे से काटेगा। आपकी मेन इंफॉर्मेशन जैसे कि तैसे रहेगी और आपका अच्छा रिपोर्ट रीडर के पास जाएगा। और दूसरी चीज है, अगर रीडर ने आपका इंट्रोडक्टरी भी पढ़ लिया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी पढ़ लिया, तो उससे समझ आ जाएगा कि इस रिपोर्ट में आगे क्या है। इसलिए इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में लिखते हैं। अपने रेफरेंसेस रेडी रखना है। अगर कोई बुक आप रेफर कर रहे हो, कोई साइट रेफर कर रहे हो, नोट्स आपने निकाले हो, उसे पढ़ के रखो। एक बार वो आपके मन में है तो आपके लिखने के फ्लो में अपने आप आती जाएगी और आपका राइटिंग अच्छा होते जाएगा। जॉट डाउन योर पॉइंट्स। फ्लो चार्ट होता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। वो फ्लो चार्ट इसलिए ही होता है कि आपका लिखने का जो फ्लो है वो फ्लो प्रॉपर आता जाए। एक कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज लिखनी है, ये अगर आप पॉइंट्स ले ले तो आपका लिखने का फ्लो अच्छा आएगा और कॉपी एक अच्छी बन के आएगी। शुरुआत के दिनों में ये मतलब जब हम न्यू होते हैं राइटिंग में, तो हमने जॉट डाउन ये पॉइंट्स निकालना एक अच्छी आदत होती है। हमेशा भी रखी तो भी कोई पॉइंट नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम रोज लिखते जाते हैं तो फिर वो फ्लो चार्ट जो अपने माइंड में ही क्रिएट होते जाता है। फिर हर बार पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, नए हम लिखने में, तो हमें ऐसे पॉइंट्स लेने चाहिए। राइट, चेक, करेक्ट एंड रीराइट। हम बन चुके नहीं हैं जो सेंसिबल है और कहे कि मैं अभी पूरा परफेक्ट होगा मेरे प्रोफेशन में, मेरी लैंग्वेज में, मेरे फील्ड में। ऐसा कभी नहीं होता। परफेक्शन इज ए यूटोपिया। ऐसा कभी नहीं होता कि हम परफेक्ट हो गए। तो हमने लिखा है तो फिर उसको चेक कीजिए। आपको एरर्स जरूर मिलेंगे। चेक करने के बाद वो एरर्स को करेक्ट कीजिए। रीराइट करना पड़े तो रीराइट कीजिए। ये प्रोसेस जितनी बार ज्यादा आप करोगे, आपकी राइटिंग, आपकी कॉपी अच्छी होती जाएगी। सो कीप राइटिंग, कीप चेकिंग, कीप करेक्टिंग एंड रीराइटिंग। लिखना तो हर कोई है, आपका क्यों पढ़े लोग। फिर आपको अपनी स्टाइल डेवलप करनी है, और जितना आप ज्यादा लिखोगे आपको समझ में आएगा कि आपकी स्टाइल क्या है। वो अपने आप डेवलप होती जाती है। उसके लिए सिर्फ होना कंसिस्टेंटली राइटिंग। आप जितना ज्यादा लिखोगे आपको समझ में आएगा कि मैं ये वर्ड्स ऐसे यूज करता हूँ, ये सेंटेंस ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसा फॉर्मेट में लिखता हूँ। तो आपकी अपनी स्टाइल डेवलप होती जाएगी और उस हिसाब से आपके रीडर्स भी बढ़ते जाएंगे और डेवलप होता जाएगा आपका रीडर बेस। कुछ जैसे कोई लोग होते हैं ना जो खुद को बहुत ग्रेट समझते हैं, होते हैं हमारे प्रोफेशन में, होते हैं हर प्रोफेशन में होते हैं, कि जिनको लगता है बस हम तो भगवान हो गए हमारे प्रोफेशन के। एक बार लिख दिया कि बस ये जैसे हम महर्षि वेदव्यास है या शेक्सपियर है कि अब तो कोई इसमें करेक्ट करना ही नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं होती। जैसे मैंने बताया, परफेक्शन ऐसा नहीं होता है। आपने लिखा है वो किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से उसको पढ़ने को दीजिए और उसको एडिट करने को बोलिए। 100% कोई ना कोई एरर उसमें आएगी। आपने लिखा है मतलब वो सारा का सारा परफेक्ट है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए एडिटर को दीजिए, जो भी है, कोई आपके दोस्त होंगे, आपके टीचर होंगे, उनको दीजिए, उनसे एडिट करवा लीजिए। आपको उसमें कुछ ना कुछ एरर आएंगे। कोई पैरा ऊपर नीचे हो गया है, कोई सेंटेंस गलत हो गया है, कोई वर्ड गलत यूज हो गया है, ऐसे हो सकता है, रेफरेंसेस गलत हो सकते हैं। तो एडिट करवा लीजिए, रीड करिए और फिर से उसको करेक्ट कीजिए। एडिट करवा लेना, इसमें कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, आपकी कॉपी अच्छी होती जाती है। सो गेट इट रेड
and edited. पहले शुरुआत में मैंने रामदास का एक कोट दिया था, दिशा माझी काहीतरी लिहावे, वो हाफ पोर्शन था. उसका लेटर पोर्शन ये है, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे. रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग. आपको अच्छा लिखना है तो आपको पढ़ते रहना है. मैं जब जर्नलिज्म में पढ़ रहा था तो मेरे सर हमें डांटते थे, हम कुछ पढ़ते नहीं थे, और उन्होंने हमें एक टारगेट दिया था कि रोज 5 न्यूज़पेपर, 2 मैगजीन और रोज एक बुक पढ़नी है. मतलब बुक कंसिस्टेंटली पढ़ते रहनी है. इतना पढ़ोगे एटलीस्ट तो कुछ आपके समझ में आएगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी और फिर आप कुछ अच्छा लिख पाओगे. तो मेरे टीचर का जो मैसेज है वही मैं पास ऑन करना चाहता हूँ. जितना आप पढ़ोगे उतना आप अच्छा लिख सकोगे, और इसलिए कंसिस्टेंटली पढ़ते रहने चाहिए. सो वो बुक हो सकती है, अभी इंटरनेट पे भी रीडिंग कर सकते हो. अच्छा पढ़ो, अच्छा लिख पाओगे, और कंसिस्टेंटली पढ़ो. सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता लिखने के लिए, आपको एक्सपीरियंस करना भी जरूरी होता है. जितने ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंसेस है उतना अच्छा और उतना वेराइटी आप अपने लिखने में ला सकोगे. क्योंकि एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है हमारे हॉरिजॉन्स डेवलप करते रहता है, वो और वाइड होते जाते हैं और हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाता है एक्चुअल एक्सपीरियंस से. हमारे जर्नलिज्म में कहते हैं आप घर पे बैठ के स्टोरी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप स्पॉट पे गए तो आपको और 10 चीजें नजर आती हैं. सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट की स्टोरी आज मैं घर पे भी किसी से फोन पे बात के लिख सकता हूँ, लेकिन मैं स्पॉट पे जाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि एक्सीडेंट में एक छोटा बच्चा भी है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो छोटा बच्चा रह गया. तो मेरी स्टोरी में एडिशनल एंगल आ जाता है. यही प्रिंसिपल सारे रिपोर्ट्स को है. आप एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ाइए अपने, आपकी राइटिंग में वेराइटी आनी ही आनी है और वो एनरिच होता जाए. मीट पीपल. जितना ज्यादा लोगों से आप मिलोगे उतना अपना राइटिंग डेवलप होते जाएगा, बेटर होते जाएगा. हर एक आदमी के पास, हर एक पर्सन के पास एक स्टोरी होती है. आप अपने से देख लीजिए, आपके दोस्तों को देख लीजिए, आपके टीचर्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके पेरेंट्स को, जो भी आपके कांटेक्ट में है उनसे आप रेफर करके देखिए. हर एक के पास एक स्टोरी होती है बताने के लिए, और ये स्टोरी किसी भी रिपोर्ट की, आप शायद आप में से जो मराठी है वो जानते होंगे, पु ल देशपांडे नाम आपने सुना होगा, या रविंद्रनाथ टैगोर ले लीजिए, या रस्किन बॉन्ड लीजिए. ये तीनों ग्रेट राइटर्स हैं. ये तीनों राइटर्स के सेंटर फोकस क्या है? तो पीपल. इनके हर एक स्टोरी में ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो अपने इर्द गिर्द रहते हैं. तो इर्द गिर्द के लोगों को लेके उन्होंने अपनी पूरी एक करियर किया है लिटरेचर में, और अच्छा लिखा है जो हम सबको पसंद आता है. तो जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतने ज्यादा आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, उतनी ज्यादा स्टोरीज मिलेगी और कंटेंट मिलते रहेगा. ट्रैवल अ लॉट. सो that is the best thing, or that is the most favorite thing of mine. कम से कम 10,000 किलोमीटर मैंने इंडिया में अभी तक घूम लिया है. तो एक स्टोरी मैं बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रैवल से रेफरेंसेस मिलते जाते हैं और आइडियाज मिलते जाते हैं. कोस्टल कर्नाटका में मैं था, एक अगुम्बे करके प्लेस है. ये अगुम्बे प्लेस सेकंड मोस्ट रेनफॉल वाली प्लेस है इंडिया में. मतलब पहला है मौसिनराम या चेरापुंजी, और सेकंड प्लेस है अगुम्बे. रेन फॉरेस्ट है वहां पे, वो कर्नाटका में, कोस्टल कर्नाटका में. तो वहां पे मैं गया था, और वहां पे एक पुराने, जिसे वाड़ा कहते हैं, एक पुराना बड़ा सा मकान, उसमें हम रहे थे. और उस मकान की जो मालकिन थी वो मराठी थी, कर्नाटका में थी लेकिन मराठी थी. कभी गए होंगे उनके एंसेस्टर्स. तो उनसे बात कर रहे थे हम, वहीं पे रहे 3 दिन. तो वो जो वाड़ा था, वो जो बंगलो था, उस बंगलो में मालगुडी डेज सीरियल की शूटिंग हुई थी. मालगुडी डेज आपने नाम सुना होगा, दूरदर्शन के समय में वो आता था. आर.के. नारायण की वो बुक है, उनका क्रिएशन है. तो वो मालगुडी डेज की शूटिंग उस बंगलो में, उस गांव में हुई थी. तो मैंने उन पे लिखा था, उस बंगलो के बारे में, उनकी जो ओनर थी वो लेडी, उनके बारे में लिखा था. फिर कुछ दिनों बाद, 5-6 साल बाद, मैं मैसूर गया, और मैसूर में मैंने आर.के. नारायण का घर देखा जहां वो रहते थे, जिन्होंने मालगुडी डेज लिखा था. तो अगुम्बे से लेकर
मैसूर के आर के नारायण तक के आर के नारायण के घर तक, ये सारी चीजें कनेक्ट करके मेरे पास अब ऐसा मटेरियल है कि जिसपे मैं वेराइटी ऑफ पीसेस लिख सकता हूँ. सो जितना आप ट्रैवल करोगे उतने ज्यादा रेफरेंसेस आपको मिलते जाएंगे, लोग मिलते जाएंगे, इंसिडेंट्स आप देखोगे, प्लेसेस देखोगे, और आप खुद इनरिच होते जाओगे. जैसे आप खुद इनरिच हो जाते हैं तो आपके लिखने में वो अपने आप आते जाता है. इसलिए ट्रैवल अ लॉट, थिंक एंड एक्ट आउट ऑफ द बॉक्स. लिखता तो हर कोई है, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जो जिससे आपके लोग पढ़ सके. एक बहुत ही मतलब टिपिकल एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन थिंक एंड एक्ट आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ लिखने में क्यों, पूरी जिंदगी में वो एप्लीकेबल है, हर फील्ड में. आपको श्री कृष्ण पता है, श्री कृष्ण की एंटायर लाइफ ये थिंकिंग एंड एक्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स ही है. अब जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, आप कभी शांति से बैठोगे तो श्री कृष्ण का पूरा लाइफ आप याद करके देखो, थिंकिंग एंड एक्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स है. आपको राइटिंग में भी वही लाना है. एक आप सबको जो पता होगा, ऐसा लिखने का एग्जांपल देता हूँ राइटिंग वाला. यू मस्ट हैव रेड अमीश एंड चेतन भगत. वो कुछ अलग लिख रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा लिखने वाले और भी लोग हैं, लेकिन चेतन भगत जो लिखता है वो ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है या उनको वो कनेक्ट कर पाते हैं. सिमिलरली अबाउट अमीश, उसने कुछ अलग लिखा, वही स्टोरीज है, वही सब माइथोलॉजी है जो हमें पता है, लेकिन अलग एंगल देकर कुछ अलग सोचकर उन्होंने लिखी है. तो अमीश इज बेस्ट सेलर, उसकी बुक्स है. सिमिलरली सेम थिंग इज अबाउट चेतन भगत. तो जो अलग सोचते हैं, अलग कुछ कर सकते हैं, उनको उतना रिस्पांस भी मिलता है, रीडरशिप भी मिलती है, और आपका रीच भी बढ़ते जाता है. सो मैंने आपको अभी तक के कुछ बेसिक्स बताए हैं. ये सिर्फ बेसिक थिंग्स है. जैसे जैसे आप करते जाओ क्या आप अपने आप कुछ डिस्कवर करते जाते हो और आपका राइटिंग अच्छा होते जाता है. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन. कंसिस्टेंसी इज द की. आप रोज करोगे तो ही आप अच्छा कर पाते हो. आप में से कितने लोग साइंस बैकग्राउंड के पता नहीं, या 11वीं 12वीं में आपका साइंस रहा होगा, उसमें एक अगर रहा होगा उसमें टाइट्रेशन करके एक प्रोसेस होती है. तो वो केमिकल के एक एक बूंद डालनी पड़ती है, और दूसरे एक वेसल में दूसरा केमिकल रहता है, ऊपर से और एक केमिकल. तो एक बूंद ही डालनी पड़ती है, और एक पॉइंट ऐसे आता है जैसे जिसमें वो नीचे जो वेसल होता है उसमें जो केमिकल है उसका द कलर गेट चेंज. किस बूंद पे वो कलर चेंज हुआ ये किसी को पता नहीं रहता, लेकिन डालना पड़ता है बूंद हर एक बार. जितना कंसिस्टेंटली आप करोगे, रोज जितना करोगे, करते जाओगे, आपकी राइटिंग अच्छी होती जाएगी. आपने आज लिख लिया कुछ, ये डिप्लोमा कोर्स हो गया, आप बहुत इंस्पायर कर रहे हो, 2-3 दिन लिखे, और फिर एकदम अगले साल ही किसी और कॉलेज ने डिप्लोमा कोर्स ऑर्गेनाइज कर लिया, उसमें आप पार्टिसिपेट हो गए, फिर अगले साल ही लिखना शुरू किया. ये बीच में एक साल में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा. आप रोज पढ़ोगे, रोज लिखोगे, कोई भी चीज प्रैक्टिस रोज करोगे तो ही क्रिकेट अच्छा खेलोगे या डांस अच्छा करोगे. सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू राइटिंग. लर्न एंड इम्प्रोवाइज. ये प्रोसेस तो कभी रुकने वाली नहीं है. लर्निंग चलने वाली है और चलने देनी चाहिए. आप जितना सीखते जाओगे और इम्प्रोवाइज करते जाओगे, आपके राइटिंग में आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होते जाएगी. सो कीप राइटिंग एंड एंजॉय राइटिंग. आई होप कि आप अच्छा लिखोगे. आप में से कुछ अच्छे राइटर नागपुर को मिलेंगे, जो नेक्स्ट अमीश या नेक्स्ट चेतन भगत आप में से मिलेगा. आप सबको बेस्ट विशेष देता हूँ. Thanks to SBCT College, Dr. Kane, Principal Sir, and here I am ending my presentation. Thank you very much. Yes, thank you so much, Mandar. Can you please stop sharing your screen? Yes, thank you so much. I'll just pin myself. I am really thrilled. I mean, अभी तक तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा लिखती हूँ, लेकिन आज के बाद में whatever inputs that you have given, I have written them on a piece of paper. So in my leisure time, I will definitely try to improvise. जैसे आपने बताया, हम सबको लगता है हम शेक्सपियर है,
एक बार लिख दिया, बाद में इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई डू अंडरस्टैंड इंग्लिश के टीचर को खास करके, अगर 2 टीचर्स है, 3 टीचर्स है और एक टेक्स्ट आप तीनों टीचर्स को दिखाओगे, तो उसमें से प्रेपोजिशंस के मिस्टेक्स या मे बी वर्बल मिस्टेक्स या अदर थिंग्स वो पॉइंट आउट करेंगे ही। तो वी ऑल्सो हैव दिस हैबिट ऑफ गिविंग आवर टेक्स्ट, स्पेशली अगर हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट दे रहे हैं तो इट गोज थ्रू मल्टीपल चैनल्स, सो दैट कहीं अगर मिस्टेक होता है तो वी कैन एक्चुअली करेक्ट आवरसेल्व्स। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर एंड टू फॉर्मली प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स, हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हुआ है कि स्टूडेंट्स को ही बताया है कि आपको सेशन ठीक तरीके से सुनना है, समझना है और वोट ऑफ थैंक्स देना है। So one of the students from the 75 students, those who have registered, is Amisha Jangde. She is perhaps not from our college, from the cluster college, and she, volunteered for a formal vote of thanks. And she said, "I'm going to propose a vote of thanks." But before that, I think I have got one question in the chat box, and that is by Anita. Yes. So Anita Tekam is saying that basically the theory is to write simple and short, but if we are new in writing, what topic should we begin with to lose the fear of putting our writing skills out there and being criticized by others? So if Mandar, you can elaborate on this. She wants, because she's a novice, Yeah. somebody who wants to start writing. So what should she actually write about? I mean, here she's talking about the topic more than the skill. Okay. Yeah. Yeah. Before saying something about topic, मैं ये कहना चाहूंगा, क्रिटिसाइज का उन्होंने कुछ मेंशन किया है और इसका आंसर तो प्रिंसिपल सर ने दे ही दिया है, बेमुरव्वत बेहया। यस। किसको वैसे भी तो हम मुजोर है नागपुर वाले, ज्यादा सोचना नहीं है किसी के बारे में, खुद का लिखना है, लिखते जाना है बस। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। दूसरों के बारे में मत सोचो, क्रिटिसिज्म होगा नहीं होगा उससे हमें लेना देना नहीं है, लिखना है, करना है। अब रहा टॉपिक्स के बारे में, कहाँ से स्टार्ट करें, तो डायरी लिखना शुरू कीजिए। आपके दिन में, आपने दिन में क्या किया, ये अगर आपने डायरी में लिखना शुरू कर दिया तो आपके समझ में आएगा आप अच्छा लिख रहे हो, बुरा लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हो, और वो इम्प्रोवाइज होते जाएगा। आपके फ्रेंड्स के बारे में लिखिए, आपके इर्द गिर्द होने वाले एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए। आज मैं यहाँ से गया, यहाँ से वहां गई, वहां से वापस आई, हो गया लिखना पहली लाइन। और वहां जाने से आने तक के जो कुछ हुआ उसमें लिख दीजिए, आपका पहला रिपोर्ट हो गया। ये सारी चीजें जो आप एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ में करते हो, वो अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो आगे आगे जाके आपको टॉपिक्स भी मिलते जाएंगे। फिर आपको रास्ते में एक लेडी दिखी जो कुछ रोड साइड में बेच रही थी, उसके पास आप रुक गए, उससे बात की तो उसने बताया कि मुझे संभालने वाला कोई है नहीं और मैं 70 की उम्र में मैं आज खुद का कमा रही हूँ। तो दैट्स अ स्टोरी। स्टोरी आपको हर जगह मिलती जाएगी। जैसे मैंने बताया ना, आईज ईयर वाइड ओपन रखो, एक्सपीरियंस करते रहो और जो लिखना चाहो वो लिखते रहो। जैसे पढ़ने के बारे में कहते हैं ना, बिलबोर्ड्स पढ़ो, पैम्पलेट्स पढ़ो, रोड पे जो भी दिख रहा है पढ़ते जाओ, वैसे ही है, जो भी दिखता है लिखते जाओ, अपने आप लिखना सीख जाओगे, टॉपिक्स भी मिलते रहेंगे। Thank you so much for that input. And there are many thank you messages over here. I think around 50 students have been connected with us, and majority of them are thankful to you. Along with this lecture, students, I'm going to post, please go to the Google Classroom after this lecture, not after this, after the session, which is going to be there just around 11:15, we'll start that. But later on in the afternoon, you can visit the Google Classroom. मंदार सर ने हमारे साथ कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, सो आपको वो वीडियोस भी देखने हैं, एंड ही हैज गिवन यू अ क्विज आल्सो. सो दिस क्विज विल बी बेस्ड अपॉन द लेक्चर दैट ही हैज टेकन नाउ. So as a kind of a supporting doc, you have the video tutorials, right? And whatever your inputs would be, I will grade at the end of the day. We'll grade you, we'll assess you according to that. And the final output, final grade will be decided on all these submissions that you are going to do, right? So we come to the end of this session and I request Amisha Jangde. Yes, sir. Yes, please. Just an appeal to all participants. Yes, sir. All of them can connect with me on Facebook, Twitter. My number I can also share. So I am available on
all social media platforms. So please connect with me for all queries, even like after this course also. Thank you so much, sir. And definitely, I'll put this information in the Google Classroom so that if anybody has missed seeing this lecture, or maybe wants to get connected with you for further development of writing and all those things, they can easily do it through the Google Classroom. So this is kind of an asynchronous learning, which Principal Sir was also referring to in the beginning, that there are a few students, those who are unable to connect even now, they are putting continuous messages because they want to join and they are unable to join. So to cater to this, we have created this Google Classroom, and it's a wonderful platform. I mean, this pandemic, had this not happened, I'm not actually eulogizing the pandemic, but I'm talking about the technological development. I mean, a teacher like me, you were talking about complete long sentences, I'm taking 5 minutes of your time, but this is important in the sense that हम जो English के teachers होते हैं, उन लोगों को काफी लेंदी सेंटेंसेस लिखने की या कंस्ट्रक्ट करने की एक आदत होती है. अभी मंदार सर ने बताया कि if in journalistic writing specifically, या if you want to reach larger audience also, so that popular अगर टॉपिक्स पे लिखना है आपको, तो आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं. ये हमें भी सीखना है अभी, क्योंकि हम लोगों के ऊपर वो ब्रिटिश इंग्लिश का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है. सो मे बी writing simple sentences, with this we will be able to connect with more students also. जैसे हम लोग गाइड्स में लिखते हैं, गाइड्स आर वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स. कोई क्लास नहीं करेगा, अटेंड नहीं करेगा, लेकिन नोट्स होते हैं जो बाजार में मिलते हैं, वो नोट्स लेके पढ़ लेंगे. तो वो नोट्स क्यों पॉपुलर है? बिकॉज इट इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश. Something which is very complicated does not reach to people. I'm very happy. Let me call upon Amisha. Amisha, are you there? Yes, ma'am. I am Yes, here. yes, Amisha. Yes, please go ahead. I am also eager to see you because we have all got connected with this platform, but I Yes, haven't ma'am. seen you. Yes, let me see where Hello. you are so that I can tag you. Yes, yes, please begin. Yes, thank you. So thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to give up to for presenting vote of thanks. So first of all, I'll introduce myself. I am from Srimati Bhinjani Mahila Mahavidyalaya. So I am third. I'm I'm in final semester now. So I'm about to graduate now, and as well I'm working in Hexaware Mihan currently. So as a in BPO industry, I'm working for Amazon. So I study as well as I work also. So this is the introduction, and thank you. So hello, good morning to everyone who gathered here. I would like to present vote of thanks. I would like to thanks to the organizer of this workshop to giving this opportunity to me. We take this golden opportunity to thank the chief guest and the uh, speaker of the today's workshop, Mr. Mandar Monore, for attending this for guiding us in his busy schedule. We will cultivate the advice you gave us in real life. Thank you very much, sir. I extend my gratitude to the respected head of the department, like English and IQC coordinator, to organize this very wonderful workshop for us, so we can make our life we can achieve something in our life and we can do something in our life. So thank you so much, ma'am, and thank you so much for all. And it is my pleasure to thank dignitaries on and off the stage, not only for participating, but also for guiding us to a beautiful life. Thank you very much, all. Last but not the least, I thank my fellow colleagues for enthusiastically participating in workshop. Without all this, workshop would not be successful. Thank you so much for all. Thank you. Thank you so much, Amisha. I'm happy you have tried. I want the others also to be prepared so that every day after the session, we will have vote of thanks from the students. Thank you so much. I'm going to end this meeting. All of you can stay back for some time because in 10 minutes time, we are going to start the advanced diploma course session. You can attend this session as well. Okay. I have one doubt about it, ma'am, only that Yes. we have registered for this course. So you are saying that we can attain this course also, advanced course also, but there will be no certification, right? Right, because this is for the third year students only. I am in third year.
You can attend, but you should register on that platform also. I'll give you the instructions later on. We can Mhm. just say goodbye to our guest speaker because Yeah, he's a sure, busy sure, sure, man sure. and he has to go back to his work also. Yes, ma'am. Yes, sure, sure. Yes. So thank you, Mandar sir, to get connected. And we are going to see him on the 9th of June also with another topic, blog writing. So he'll give us inputs over there too. Thank you so much. Thank you.